Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Few more people are joining. Okay, so we are in a habit of starting the session at the right time as scheduled. So first of all, I would like to welcome all the participants for the this fruitful session which is we are going to conduct today. I'll quickly introduce you all with the today's speakers, and then we'll start the session. Okay, so first of all we have Bhushan Mathur sir. Bhushan sir, please turn on your camera. So we have Bhushan Mathur sir. He is a senior secretariat assistant at KV number 1 Gurgaon, Gurugram region. He'll be supporting our today's speakers in their topics, and will be guiding us during the session and after the session also. So then we have after Bhushan sir, we have Ajay Bist sir. Ajay Bist sir is also senior secretariat assistant in Kendriya Vidyalaya Gutti, Hyderabad region. He'll be giving us the rule position on child education allowance, that is CEA, then LTC, leave travel concession, and then TADA rules. And apart from Ajay Bish sir, we have one more speaker, Sandeep Negi. So Sandeep Negi sir is also is JSA Junior Secretariat Assistant at KV ITBP Bhanu, Gurugram region. He will be guiding us on the rule position of leaves. He'll be telling us about all types of leaves, and you can ask your questions at the end of the sessions. So quickly, I would like to welcome all the speakers on behalf of all the participants, and I'll quickly hand over to Sandeep Negi sir so that he can start the session and we can quickly make it. Thank you. Sandeep Negi sir. Thank you, Pawan sir. Welcome, Everyone sir. hear me? Yes sir, you are audible. You can start. Okay. Sir, Can we start? one more request sir, please make it in both the languages, Hindi and English. I have received many requests from the participants to conduct it in Hindi also. So yes, thank you sir. Thank you, Pawan sir. And good afternoon, everyone. जैसे कि पवन जी ने आपको मुझे मेरे बारे में बता दिया, मेरा नाम संदीप नेगी है एंड आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु JSA. जैसे कि आपको पता ही है कि लीव रूल के बारे में आप लीव्स होती हैं, जो लीव, अर्न लीव्स एंड अदर लीव्स, बट हमें फेमिलियर नहीं होते उसके साथ पूरी तरह से, हमें एग्जैक्टली हमें पता नहीं होती. तो कहीं ना कहीं हम कौन सी लीव लेनी है, कब हम वो ले नहीं पाते, हमें कैजुअल लीव नहीं पता नहीं. इसके बारे में हम सेशन ले रहे हैं, तो इसमें कुछ हो सकता है डाउट मेरे भी हों, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे. तो आपके भी होंगे तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ. देन वी स्टार्ट. आपको फर्स्ट इज आवाज नहीं आ कैजुअल रही? लीव, फिर हम स्टार्ट करेंगे कंपेंसेटरी Echo हो रहा है? क्या हो रहा है? अर्न लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव ठीक है ना? एंड मुझे तो ठीक आ रही है. CCL, UL, स्टडी लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव. ओके, देन वी स्टार्ट फ्रॉम कैजुअल लीव. कैजुअल लीव हमें 8 जो दिए हैं ना कैलेंडर ईयर, 1 दिसंबर. ओके, देन हम इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, हमारे स्पेशल कैजुअल लीव के साथ भी ले सकते हैं. ओके,
Is my voice is audible? यस सर, थोड़ा आवाज Hello? ब्रेक हो रहा था लेकिन Yes, अभी sir. ठीक है। Okay, okay. यस सर। Okay. तो कैजुअल लीव को हम मैक्सिमम हम 5 तक ले सकते हैं इन वन टाइम हम 5 तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि आपके कंप्लेंट अथॉरिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो देते हैं कि नहीं देते 8 आपको। अगर आपके पास 8 बड़ी है, आपके पास बैलेंस है, देन ओके आप हाफ डे भी ले सकते हैं, इसे हाफ डे करके भी ले सकते हैं, वन डे फुल ले सकते हैं। बट ये कैजुअल लीव होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है। आप शॉर्ट टर्म में कोई आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, देन आप घर से भी ये बोल सकते हैं कि आप ईमेल से ले सकते हैं, या आप कॉल करके अपने प्रिंसिपल को बोल सकते हैं कि मुझे ये वन डे की कैजुअल लीव चाहिए, या 2 डेज़ या 3 डेज़। तो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये कैजुअल लीव आपके जो संडे हॉलीडेज होते हैं, आप उसके बीच में भी ले सकते हैं। जैसे संडे आपका क्लब हो रहा है तो आपकी वो उसमें ऐड नहीं होगा। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 3, 4, 5 डेज का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 3 and 4 is a Sunday and 5 Monday, 3 is a Saturday and 4 Sunday। देन 3 और 5 का ही आपने अप्लाई करना है कैजुअल लीव 2 डेज के लिए। 4 उसका उसमें जो इन बिटवीन जो दोनों के 3 और 5 के बीच में आ रहा है वो कैजुअल लीव आपका ऐड नहीं होगा और ना आपके डिडक्ट होगा। आपको 2 डेज का ही कैजुअल लीव लेना है। ओके। और ये कैजुअल लीव आप अपने टूर के टाइम भी ले सकते हैं। आप ऑन टूर हो तो टूर के आप बिफोर टूर और आफ्टर टूर भी ले सकते हैं। बट आपको उसमें जो भी अलाउंसेस, ड्यूटी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो एडमिसिबल नहीं होंगे। ओके। आपको ठीक है, ये आप LTC जब LTC लेना चाहें LTC के साथ भी कैजुअल लीव ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको और किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। नॉट कंबाइंड विद एनी अदर लीव, EL, HPL एंड अदर, ओनली फॉर स्पेशल कैजुअल लीव विद कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव एंड कंपनसेटरी कैजुअल लीव, जो भी कंपनसेटरी लीव होती है। ओके। कैजुअल लीव में इतना ही है। हम आगे बढ़ते हैं अर्न लीव की तरफ। अर्न लीव आपको पहले नॉन टीचिंग के लिए ही थी, ओनली टीचिंग स्टाफ के लिए, जो वोकेशनल स्टाफ हैं उनके लिए नहीं थी। उनको अब प्रोवाइड की जा रही हैं। 11 दिसंबर 2018 का एक सर्कुलर है। पवन जी आप शो करेंगे, आपको दिखा सकते हैं गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हाँ मैं प्रेजेंट करता हूँ। हाँ ये स्क्रीन पे आ गया। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये गजट नोटिफिकेशन 2018 में आया 11 दिसंबर को। इसके अकॉर्डिंग आप वोकेशनल स्टाफ को भी अर्न लीव दी जा रही हैं, और HPL जो पहले मिलती थी हाफ पे लीव, वो अब से इसके बाद से एडमिसिबल नहीं होगी, वो नहीं दी जाएंगी आप। और इसमें भी आपको ऐसा है कि नॉन टीचिंग में जो हैं उनके लिए 30s होती हैं फॉर फुल ईयर, और आपको 10 डेज दी जाएंगी। वोकेशनल स्टाफ जो कि टीचिंग स्टाफ हैं उनको 10 डेज की दी जाती है। फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 5 एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 5। अगर आपने न्यू ज्वाइनी है, कोई इन बिटवीन ज्वाइन करता है ईयर में, तो उसको मंथली के मंथ्स के हिसाब से डिपेंड करेगी 5-6 की रेशियो में। अगर 5-6 की रेशियो मान लीजिए आप 10 मंथ्स कंप्लीटिंग मंथ्स माना जाएगा। कंप्लीट मंथ आप अगर करते हैं, मान लीजिए 1 मार्च को आपने ज्वाइन किया, 1 मार्च को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक आपके 10 मंथ्स होते हैं। तो आपको 5-6 की रेशियो से उसे मल्टीप्लाई करके जो भी उसमें आपकी आती है 5-6 की करके 10 से करेंगे आप, तो जितनी भी होंगी वो आपको क्रेडिट होंगी उसके हिसाब से। अगर आप कंप्लीट फुल ईयर वर्किंग है, मान लीजिए 1 जनवरी को आपने ज्वाइन किया, तो आपको 1 जनवरी से ही आपके एडवांस क्रेडिट हो जाएगी 5 ईयर क्रेडिट हो जाएंगी आपके 1 जनवरी को फॉर 6 मंथ।
एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपकी 5 ऐड होंगी और तो 10 आपको कंप्लीट ईयर में मिलती है। और आपकी जो HPL है ये डिडक्ट कर दी गई है, अब HPL नहीं दी जाती है आपको, ठीक है। और ये 180 डेज के मैक्सिमम आप 180 डेज के अप्लाई कर सकते हैं इन अ वन टाइम। और ये 300 से इंटायर सर्विस में 300 से ज़्यादा बैलेंस नहीं रख सकते आप अपने पास। आप अगर कोई भी इन सर्विस और अपने समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या अपने ऑटम ब्रेक में तो वैसे भी 10 डेज का होता है, तो हो सकता है उससे कम भी हो जाए। तो जब भी 10 डेज की आप 10 डेज का कोई भी आप ऑन ड्यूटी पे रहोगे, ऑन वेकेशंस और हॉलीडेज, तो आपको 350 रेशो से आपके EL क्रेडिट होंगी आपके अकाउंट में। बट वो भी आप डिपेंड करता है, आपको पहले उसकी परमिशन लेनी होगी अगर आप वेकेशन पे हो, अगर आपकी कोई ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं स्पेशल। संदीप सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक अपडेट है कि ये जो 10 डेज वाला ड्यूटी का था ना, ड्यूरिंग वेकेशन पहले होता था 10 डेज अगर आपने कंटिन्यूस ड्यूटी की है वेकेशन में या ब्रेक में, तो आपको 3/5 के हिसाब से लीव मिलती थी। मीन्स 5 दिन की ड्यूटी के लिए आपको 3 दिनों की EL मिलती थी। बट अब ये चेंज हो गया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो 2020 का है उसके अकॉर्डिंग ये 2/5 हो गया है, और इसके लिए मिनिमम 20 डेज़ आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। यानी कि ब्रेक्स में ड्यूटी करने पे हमें EL नहीं मिलेगी, बट अगर वेकेशन में 20 डेज़ एंड मोर की अगर हमारी ड्यूटी लगी है तो हमें EL मिलेगी। जस्ट ये एक अपडेट था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसके बाद ऑफ पे लीव जो 2000 पहले की जनवरी के बाद आपको नहीं दी, आगे लीव से पहले सर, 20 डेज की दी है। संदीप सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो संदीप सर, वीडियो भी पॉज हो गया है और आवाज़ भी ब्रेक हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए। पवन, ये एक बार जो आपने बताया एक बार मुझे फिर से रिपीट करना, इसको क्या अमेंडमेंट बता रहे हो आप इसमें? सर अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर है ना उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 20 डेज़ की ड्यूटी होनी चाहिए आपकी वेकेशन में। अब ब्रेक्स में जो 10 दिन की ड्यूटी लगेगी उसके बदले में केवल CCL ही मिलेगी, EL नहीं मिलेगी। और आप वेकेशन में अगर आपकी 20 या मोर 20+ डेज़ की ड्यूटी लगी है स्कूल में, तो आपको उसके बदले में 2/5 के हिसाब से, यानी कि 5 दिन की ड्यूटी के लिए 2 दिन की EL मिलेंगी, और मिनिमम 20 डेज़ आपको ड्यूटी करनी होगी। कोई इसका कोई अमेंडमेंट सर्कुलर है क्या आपके यहाँ? हाँ सर्कुलर है सर, मैं शेयर कर दूंगा सर्च करके, मैंने पढ़ा हुआ है सर्कुलर। हाँ नहीं, मैंने भी देखा, ये रूल तो मैंने देखा है, पर इसका आगे का क्या आया अभी वो नहीं पता चला। थोड़ी वॉइस कट रही है पवन आपकी। संदीप सर, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक बार चेक कर लीजिए, आपकी वीडियो भी पॉज है और आपका वॉइस भी नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। ओके, जब तक संदीप सर वापस आते हैं मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ से। EL हमें साल में 2 बार मिलेंगी, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को। 5 EL 1 जनवरी को, 5 EL 1 जुलाई को मिलेंगी। और इसके बाद अगर हमारी वेकेशन में ड्यूटी इसके अलावा अगर हमारी वेकेशन में ड्यूटी लगी है फॉर मिनिमम 20 डेज़, तभी हमारी हेलो वाईफाई ले ले, भाभी के यहाँ से ले ले या कहीं से ले ले, अपना मोबाइल नेटवर्क।
थोड़ा इधर उधर होके ट्राई कर ले यार, मैंने तैयारी नहीं की है, मैं थोड़ा बहुत तो बता दूंगा बट सारा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर, मैं जब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, तो HPL जो है हमारी, वो हमारी डिसकंटिन्यू हो गई 2018 दिसंबर 2018 के बाद से HPL डिसकंटिन्यू हो गई। पहले जिन लोगों के पास HPL होती थी, HPL को ही हम कम्यूट करते थे मेडिकल लीव्स के लिए। तो अगर आप मेडिकल पे जाना चाहते हैं तो आप एक्सक्यूज मी कौन सा यस मैम, वैकेशन या फिर ब्रेक में जो हम ड्यूटी करते हैं, हाँ। तो उसमें आपने बताया कि जो हमें ईयर मिलती है वो मैक्सिमम 20 डेज, मिनिमम 20 डेज होना चाहिए, हाँ मिनिमम, और वो हमें 2/5 डेज के रेशो से हमें मिलती है। तो क्या जो CCL मिलती है वो भी 2/5 डेज के नहीं। रेशो से मिलेगी हमें? CCL आपको पूरी मिलेंगी। अगर आपने 10 दिन पूरी फुल टाइम ड्यूटी की है तो 10 दिन की CCL मिलेगी। ओके सर। CCL के लिए रूल है कि आपको CCL जो है वो आपको विद इन 30 डेज कंज्यूम करनी होती है, बट ये प्रिंसिपल के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर होता है। अगर उनके पास स्टाफ की कमी है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो आपको अगले नेक्स्ट मंथ्स में आगे कंटिन्यू करके दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर प्रिंसिपल्स दे देते हैं छुट्टी CCL। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और EL जो है, EL आप जमा कर सकते हैं। सो अब हमें जो ELs मिलती हैं 2018 दिसंबर से, वो हम उसे अपने अकाउंट में सर्विस बुक में जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम हमारे पास 300 ELs हम एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा हम इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। और ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, EL का जो है हमारा रिटायरमेंट के टाइम पे उसका पे आउट मिलता है हमें। जो भी हम EL जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में और अवेल नहीं करते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उस वक्त की सैलरी के हिसाब से उसका पे आउट दिया जाता है EL का। और HPL का भी कुछ लिमिट है, उस लिमिट तक हमें पे आउट मिलता है। बट अब क्योंकि HPL डिसकंटिन्यू हो गया तो कोई मतलब नहीं है HPL के बारे में बात करने का, बट फिर भी एक सर इसका एक रूल ये भी है कि जैसे जो EL आपके पास है, सपोज 300 में से 250 है, हाँ। या सपोज करें आपके पास 240 है, तो वो रिमेनिंग जो 60 है वो आप HPL से कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, उस HPL का पेमेंट उस रिमेनिंग 60 से होता है। बिल्कुल। तो अगर आपके पास 250 EL जितनी है हमारी EL पूरी इनकैशमेंट के लिए है, हाँ, और हाफ पे लीव हाफ पे के हिसाब से पेमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमारे पास 250 ELs हैं और हमारे पास 100 HPL पड़ी हैं, तो वो 100 HPL इधर 100 HPL में से 50 HPL इधर मिला दी जाएंगी और हमें टोटल 275 डेज़ का पेमेंट होगा। यही होता है ना भूषण सर? करेक्ट है, हाँ, करेक्ट है। थैंक यू। तो ये हमारी जो बेसिक लीव्स हैं, कैजुअल लीव, CCL जो हमें मिलती है जब हम एस्कॉर्ट ड्यूटी पे गए होते हैं और बीच में छुट्टी आ जाती है, या फिर हमारी वेकेशन में या ब्रेक में ड्यूटी लग जाती है, या हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे होते हैं, तो हमें CCL मिलती है। और उसके बाद CL कवर कर लिया हमने, CCL कवर कर लिया, और EL एंड HPL। सो HPL जो पहले होती थी, जब हमारे पास कोई स्पेशल मेडिकल लीव नहीं होती है हमारे पास, तो हम जब पहले HPL मिलती थी हमें, तो HPL को हम कम्यूट करते थे। कम्यूट करने का मतलब है एक दिन के लिए 2 HPL कटेंगी और हमारी सैलरी नहीं काटी जाएगी, बट वो कम्यूटेशन जो है HPL का, वो केवल मेडिकल ग्राउंड पे होता था, और किसी ग्राउंड पे हम कम्यूट नहीं कर पाते थे। और उसके लिए हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऑफिस में देना होता था अगर हम HPL को कम्यूट कर रहे हैं तो। बट अब क्योंकि हमारे पास HPL नहीं है तो किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप EL अवेल कर सकते हैं या CL अवेल कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा होती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है प्राइवेट अफेयर्स पे। यस सर। Excuse me, sir, one question. यस सर। So prior to the conversion of EL, we have in our record around some HPL. Can we use that now and commute for medical purpose? डेफिनेटली सर। अगर आपके अकाउंट में कुछ You can avail. यस, यू कैन अवेल। अगर आपके अकाउंट में HPL है तो आप उसे कम्यूट कर सकते हैं या एज ए HPL भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है। Okay, sir, thank you. और
मैं कहा नहीं, ईयूएल पे। ये भी है कि शायद इसमें यह है कि अगर वो एचपीएल अगर विदाउट मेडिकल लेते हैं तो उनको हाफ ग्रांटेड हो सकती है, और अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं तो वो फिर हाँ। जो एचपीएल है वो कम्यूट हो सकती है। मतलब बात वही है, अगर आप एचपीएल लेते हैं 1 डे का तो आपको हाफ डे की सैलरी आपकी डिडक्ट होती है, बट अगर आप कम्यूट कराते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, कम्यूट एक्चुअली मेडिकल ग्राउंड पे ही होता है केवल, तो उसको हम मेडिकल लीव भी बोल देते हैं कई बार, तो उसमें क्या होता है 2 एचपीएल एक दिन के लिए 2 एचपीएल काटी जाती है। सो इट मींस दैट एचपीएल तो अब तो एक्चुअली नहीं है, फिर भी हमारा अकाउंट में जो भी है हम इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में कुछ एचपीएल हैं तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका वो लीव बैलेंस है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईओएल। ईओएल 2 तरीके से लेते हैं। ईओएल होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जब भी आप लेंगे आपको सैलरी डिडक्ट होगी, आपको उसके बदले में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और ईओएल का कोई अलग से अकाउंट नहीं होता है। ईओएल जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है एक्सट्रीम केसेस में, तब आप अप्लाई करके और अपने कम्पिटेंट अथॉरिटी से उसे ईओएल को ले सकते हैं। बट ईओएल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइवेट अफेयर्स पे, एक होता है मेडिकल ग्राउंड पे। सो अगर आपने मेडिकल ग्राउंड पे लिया है तो आपकी सर्विस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने प्राइवेट अफेयर्स पे लिया है तो आपकी सर्विस में फ़र्क पड़ता है। वो कैसे फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। ईओएल में क्या होता है, मान लीजिए आपने ईओएल लिया 1 महीने के लिए ड्यूरिंग योर सर्विस, तो अभी आपका कंफर्मेशन होना है, आपने ईएल ले लिया 30 डेज़ के लिए टोटल, तो आपका कंफर्मेशन जो है वो 30 डेज़ के लिए डिले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेडिकल ग्राउंड पे लिया है तो वो डिले नहीं होगा, वो आपका ऑन सर्विस ऑन ड्यूटी ही काउंट होगा। बट अगर आपने प्राइवेट अफेयर्स पे लिया है कि मेरी शादी है या मेरे घर में ये है फंक्शन है या मेरे को ये ज़रूरी काम है इसलिए मैं ईओएल ले रहा हूँ, तो आपका क्या वो जितने भी दिन का आपने ईओएल लिया है उतने दिन आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। और उसके बाद प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, प्लस आपका कंफर्मेशन उतने दिन डिले से होगा। फिर 12 साल के बाद जो हमें सीनियर स्केल मिलता है और 24 साल के बाद जो हमें सिलेक्शन स्केल मिलता है, उन सभी में उतने दिनों का फ़र्क पड़ जाएगा जितने दिनों की आपने ईओएल ली है, ठीक है। सीनियरिटी में भी फर्क पड़ जाता है थोड़ा, सीनियरिटी भी फिर जूनियर वगैरह हो जाते हैं। सीनियरिटी में भी फ़र्क पड़ जाता है, सर बता रहे हैं। तो ईओएल अगर हम प्राइवेट अफेयर्स तो हमें बचना चाहिए, ईओएल हमें लेने से बचना चाहिए, प्राइवेट अफेयर्स में हमें नहीं लेना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें हमें प्राइवेट अफेयर्स पे ईओएल लेनी पड़े, क्योंकि उससे हमारी सर्विसेज में डिले हो जाता है सभी चीज़ों में, कंफर्मेशन में, सीनियर स्केल में, सिलेक्शन स्केल में, सीनियरिटी में, और एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है, एक गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस बुक में नोट की जाती हैं। तो ईओएल ऑन प्राइवेट अफेयर्स से हमें बचना चाहिए। और उसके बाद आता है सर्विस ब्रेक और डाइज। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ईओएल। सर 1 ईयर में कितना ईओएल ले सकते हैं मैक्सिमम? ईओएल? यस सर, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। सर ऐसी कोई लिमिट नहीं है इसके लिए कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, बट आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी आपको अप्रूव करते हैं। ओके सर, आई ज्वाइंड इन द केवीएस इन 2018। इन 2019 मैंने 80 डेज का मैंने ईओएल लिया, अभी मैं 20 में ले सकता हूँ क्या? ईओएल आप ले सकते हैं सर, वो ये आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपके प्रिंसिपल कभी भी ले सकते हैं। यू कैन अवेल एनी टाइम, यू कैन अवेल एनी टाइम। और उधर लिमिट है क्या सर, कोई मैक्सिमम मिनिमम डेज का कोई लिमिट है? नहीं सर, कोई लिमिट नहीं है, बट जैसे आप जितने भी दिन की ईओएल लेते हैं उतने दिन आपकी सर्विस बेनिफिट्स में फ़र्क पड़ जाता है। और बट अगर आप कभी विदाउट अप्रूवल ईओएल पे गए हैं तो आपकी सर्विस ब्रेक हो सकती है, आपका पीरियड डाइज डाउन हो सकता है। सर्विस ब्रेक का बहुत बड़ा लॉस होता है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारी होती है एक सर भूषण सर, आप थोड़ा मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव के बारे में बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। आप जैसे जनरली ये हमारे यहाँ मैटरनिटी लीव का रूल ये है कि जब लेडी चाहे तो 180 डेज वो उसी दिन से कंसीव, जिस दिन से उसने डॉक्टर ने उसको किया कि शायद आपका इस तारीख को, इस डेट को, इस मंथ में होगा, तो उस मंथ की बिगिनिंग से मैटरनिटी लीव 180 डेज के लिए अवेल कर सकती है। और
उस 180 डेज के बाद वो चाहे, और प्रिंसिपल अगर उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो उसको वो आगे सीसीएल में कन्वर्ट कर सकती है, पर 180 डेज उसके उस मंथ से शुरू हो सकती है। पैटर्निटी लीव जब बेबी बोर्न हो जाता है तो उसके बाद जो मेल है, उसका जो हस्बैंड है या जो स्पाउस है या जो हमारा केवी का एम्प्लॉय है, और अगर उसकी वाइफ अगर उसको डिलीवरी हुई है तो उसको 15 डेज वो उसके बाद ले सकते हैं, डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव पे किसी का क्वेश्चन है, कोई डाउट? भूषण सर। हाँ यस सर। के सर पूछिए। भूषण सर, एक मेरे नॉन है, वो बेंगलोर में पोस्टेड है, उनको उनके प्रिंसिपल ने पैटर्निटी लीव को वो मंजूर नहीं किया, उनको मना कर दिया, और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो पैटर्निटी लीव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है, तो उनको पैटर्निटी लीव में नहीं किया गया, तो उसके ऊपर क्या एक्शन, मतलब कुछ कर सकते हैं या नहीं? देखो, कायदे से तो आपको प्रिंसिपल से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करनी चाहिए कि भाई वो उसकी हक की छुट्टियां हैं वो उसको मिलनी चाहिए, पर हाँ अगर ड्यूरेशन होता है तो विद इन 6 मंथ वो चाहे तो उसको उस मंथ में नहीं लिया हो तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो अवेल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कोई एग्जाम ऐसा आ गया या किसी प्रिंसिपल ने कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बताई कि उस व्यक्ति की उसको बहुत जरूरत है, पर वो विद इन 6 मंथ इसको अवेल कर सकते हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक ही एक्सक्यूज दिया कि आपके 11th का रिजल्ट बिगड़ रहा है तो आपको हम लीव नहीं दे सकते। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ऐसे कोई इम्पोर्टेंट, जैसे मान लो कोई एग्जाम कब हुआ, तो वो एम्प्लॉय 6 मंथ के अंदर अंदर उसको ले सकता है सर। या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि सर ये है ना, विद इन 6 मंथ 180 डेज में हम अवेल कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल केस है तो वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है उस केस में, बट ये मतलब ये भी है, तो मैंने एक जगह ये भी लिखा है कि अगर वो प्रिंसिपल चाहे या जैसे वो एम्प्लॉय चाहे, अगर उसको उस समय नहीं अवेल कर पा रहा है या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट वो है तो वो 6 मंथ्स बाद भी ग्रांट कर सकता है, पर वो कंडीशन यही लगेगी उसकी कि उस वक्त की अगर वो एम्प्लॉय की उसमें होनी चाहिए। अगर जैसे प्रिंसिपल ने कहा कि भाई अभी एग्जाम है, मैं आपको ग्रांट नहीं करता, तो वो बाद में भी ग्रांट कर सकता है। ओके, ठीक है सर। के सर भी ये मतलब ऐसे जो पर्सनल लेवल पे लीव ना ग्रांट करना या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी अभी रूल पोजीशन ये कहता है कि पैटर्निटी लीव के लिए हर एक मेल एम्प्लॉय एलिजिबल है, जब भी उनका चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो विद इन 6 मंथ पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, और एक्सेप्शंस में प्रिंसिपल चाहें तो आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 180 डेज भी उनको ग्रांट कर सकते हैं। तो यही रूल है, और 15 डेज की पैटर्निटी लीव मिलती है। और पंकज जी का कुछ क्वेश्चन है मैटरनिटी लीव पे, पंकज जी पूछिए। हेलो। हाँ सर पूछिए। सर मुझे ये पूछना था, अगर कोई 6 मंथ का मैटरनिटी लीव लेता है, हाँ, और 89 डेज का चाइल्ड केयर लीव उसी के साथ सैंक्शन कराता है, तो क्या उसे HRA कितने दिन का एडमिसिबल होगा? हाँ भूषण सर। देखिए, HRA उसको 6 मंथ्स का ग्रांट होगा, और चाइल्ड केयर लीव क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन में है तो इसके बाद चाइल्ड केयर लीव के लिए बंद हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ मतलब ये है कि एब्सेंस के 1 महीने बाद, यानी नेक्स्ट मंथ से उसका वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट मंथ कब से? जब से मैटरनिटी खत्म हो रही है उसके नेक्स्ट मंथ से? हाँ ठीक है सर, हाँ जी जी। और कोई क्वेश्चन? प्रीतम सर का कोई क्वेश्चन है? प्रीतम सर। हेलो। यस मैम, पूछिए। जी सर, ये पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव है, इनके साथ में ईएल को कंबाइन कर सकते हैं क्या? एज पर रूल के तो नहीं, पर यह है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इमरजेंसी आ गई, या आप ऑलरेडी जैसे लीव पर चल रही हैं और एकदम एट ए सडन आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि भाई आपको तुरंत ही ऐसे, उस कंडीशन में ग्रांट हो सकती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अलाउड है। जी जी, थैंक यू। ओके, पूनम मैडम पूछिए। जी सर, ये प्रोबेशन में हम लोग चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं क्या सर?
सर चाइल्ड केयर लीव के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। हेलो, वैसे कंफर्मेशन के बाद ही मिलती है चाइल्ड केयर लीव, आफ्टर कंफर्मेशन ओनली। ओके, और क्या चाइल्ड केयर लीव के दौरान हम लोग इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं सर? हेलो, इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम अगर 6 मंथ्स आपकी प्रेजेंस है स्कूल में तो आप इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में आप हेलो जी सर, जी जी पवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। हाँ, मेरा कहना ये है पवन कि अगर 6 मंथ्स अगर उसके कंप्लीट हो गए हैं तो इंक्रीमेंट के लिए वो एलिजिबल है। ओके सर, एक्चुअली अभी मैं इस पेंडेमिक की वजह से अपने होम टाउन से वर्क कर रही हूँ। हालांकि मैंने चाइल्ड केयर लीव के लिए अप्लाई किया था और मैं प्रोबेशन में हूँ, तो लेकिन मेरा इंक्रीमेंट से नहीं लगा है और मुझे 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। मुझे मोर देन 8-10 मंथ्स हो चुके हैं। नहीं, आप अगर फर्स्ट ईयर बिगनिंग है तो आपका पूरा एक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही इंक्रीमेंट लगता है। इनिशियली ज्वाइनिंग का रूल हमारा ये है कि 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीमेंट लागू होगा। नहीं भूषण सर, ये 7 CPC में थोड़ा चेंज हो गया है ना। अगर 2 जुलाई से 1 दिसंबर तक हमने ज्वाइन किया है तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाता है। और अगर हमने उस केस में भी पवन 1 ईयर उसका कंप्लीट होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, जो अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर निकला था उसमें ये था कि अगर किसी का कंप्लीट ईयर होता है, मतलब जैसे 6 मंथ्स बता रहे हो, वो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही अगर कोई है तब है शायद। नहीं सर, 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो हो जाता है। 6 मंथ इंक्रीमेंट में ऐसा कि जैसे 6 महीने हमको कंप्लीट करने होते हैं, वो चाहे जनवरी में हमारे हो या चाहे जुलाई में, हाँ। उसके अकॉर्डिंग शायद मिलता है। हाँ हाँ, अगर मान लो हमारे जनवरी में 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसमें लग जाएगा, उसमें नहीं होते हैं तो आगे फिर जुलाई में लगेगा, ये होता है। ओके, नहीं, मे भी ऐसा हो सकता है कि जो वेकेशन में ना वो काउंट नहीं होता। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 6 मंथ पूरे ना हो, इसीलिए इंक्रीमेंट। हेलो, यस मैडम, पूछिए। यस सर, मेरी एक कलीग है जिनका प्रोबेशन भी क्लियर हो चुका और चाइल्ड केयर लीव भी अप्लाई कर रखी, उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिला है। देखिए, तो ये इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सर? मैम उनका पूरा केस समझना पड़ेगा कि क्या रीजन था, कब उन्होंने ज्वाइन किया। वो इंडिविजुअल का केस को देखना पड़ेगा कि भाई क्या उसका पहले कुछ ऐसा था या प्रिंसिपल ने किस वजह से ऐसा नहीं लगाया। हो सकता है वो जिस दिन ज्वाइन करेगी उसका एक साथ ग्रांट भी हो सकता है उस समय। कई बार ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है कि प्रिंसिपल ये वेट करते हैं फिर एक साथ कर भी देते हैं, सब कुछ होना। ओके, और मैं एक मैटर से संबंधित एक बात पूछ रहा था। हाँ सर, कि जैसे जनरली लोगों को डाउट ये होता है कि मैटरनिटी ग्रांट कब से होनी चाहिए, या जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन भी था अभी। और मुझे मुझे सडनली लेबर पेन हुआ और मुझे एडमिट होना पड़ा, तो क्या डेट ऑफ ग्रांट होती है? इसका कोई एक रूल सर्कुलर में वैसे अगर कोट करना चाहूँ तो आप बता पाओगे? मैं सर सर्कुलर इससे संबंधित ढूंढ के और शेयर कर दूंगा इसके लिए कि कब से हम ले सकते हैं। ऐसे कायदे ये है कि डॉक्टर जो हैं वो जिस दिन उस लेडी को करते हैं कि भाई आपका प्रपोज डेट ये है, तो उस मंथ की बिगिनिंग से वो अपनी मैटरनिटी एलिजिबल हो जाती है, मैटरनिटी अप्लाई करने के लिए। हाँ, यस मैडम। सर, इंक्रीमेंट से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन था। मेरी कलीग हैं, उनकी शादी थी 29 जून को, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अपनी शादी के लिए छुट्टी की। उसके बाद वो 1 जुलाई को अटेंड नहीं कर पाए स्कूल, तो उनका इंक्रीमेंट तब तक के लिए रुक गया था। जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उनका इंक्रीमेंट लगा, लेकिन वो कुछ जितना टाइम से वो एब्सेंट थे उतना टाइम उनका जिस डेट पे उन्होंने ज्वाइन किया होगा ना मैडम, जिस डेट पे उन्होंने ज्वाइन किया होगा उस डेट से इंक्रीमेंट लगा होगा। के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। उस दिन आपकी फिजिकली प्रेजेंस स्कूल में जरूरी है। अगर आप फर्स्ट हाफ में अगर एब्सेंट भी रहते हैं और अगर सेकंड हाफ में अगर आप प्रेजेंट हैं तो उसमें भी आपको इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है, परंतु उसकी फिजिकली प्रेजेंस जरूरी है। अगर फिजिकल प्रेजेंस फर्स्ट को नहीं है, अगर सपोज सेकंड को है या 8th को या 10th को है, तो जिस दिन बंदा उस स्कूल में प्रेजेंट होगा इंक्रीमेंट उसी डेट से इंक्रीमेंट होगा।
सेम रूल ये जनवरी में भी लागू। सर क्या ऐसा कोई केस होता है कि अगर कोई 1 जुलाई को प्रेजेंट ना हो पाए फिजिकली किसी कारण से, तो भी उसका इंक्रीमेंट ना रुके 1 जुलाई से? अगर वो कैजुअल लीव पे है मैडम, अगर वो कैजुअल लीव पे हैं तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा। हाँ, दोनों चीजों में पवन, मुझे लगता है कैजुअल लीव के अलावा जैसे कोई ऑफिस ड्यूटी, जैसे कहीं सपोज करो आपको फील्ड में कहीं भेजा है किसी ड्यूटी पर, जैसे मान लो कोई आप कोई इन सर्विस कोर्स अटेंड कर रहे हो, या जैसे कोई इलेक्शन ड्यूटी पे गए हो, या कोई ऑफिस के इस तरह से इम्पोर्टेंट, उस केस में भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा, उसमें कोई वो स्टॉप नहीं होगा। ओनली अगर वो अपनी खुद की लीव पर है या किसी वजह से वो ऐसे एब्सेंस में है तो नहीं लगता, बाकी अदरवाइज अगर वो किसी भी टाइप की ऑफिस ड्यूटी पर है या कहीं उसमें है तो वो एलिजिबल है। ओके सर मैटरनिटी लीव में तो ये अप्लाई नहीं है ना? नहीं, मैटरनिटी लीव में इसका कोई वो नहीं है। और उसके अलावा सर अगर कोई मेडिकल केस हो, किसी का इमरजेंसी, मतलब ना वो प्रेजेंट लगा सके अपनी स्कूल में, तो उसमें जैसे भी जैसे क्या कहना है, जैसे सर जैसे किसी का कोई मेल है, उनका कोई मेडिकल कंडीशन इस तरीके का है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिकल नहीं, ये केवल उनको एग्जामिशन ओनली कोई विशेष केस जिसमें जहां वो खुद किसी ऑफिस की ड्यूटी पर हो या उसको किसी वजह से कहीं बाहर भेजा गया, वो एग्जामिशन है। अदरवाइज और कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, थैंक ये बहुत क्लियर है, इसमें हमें कुछ नहीं कोई डाउट नहीं है। केवल एक कैजुअल लीव में आपको अलाउ हो सकता है, और ऑफिशियल ड्यूटी पे अगर आप बाहर हैं या ट्रेनिंग वगैरह पे हैं, मतलब ऑफिस ड्यूटी पे हैं, तब आपको अलाउ हो सकता है इंक्रीमेंट। अदरवाइज जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन से आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। संदीप सर, अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल से अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। हेलो हेलो जी मैडम, पूछिए। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। अगर हमने 1 जुलाई को ज्वाइन नहीं किया है, हाँ। मान लो हमने 5 जुलाई को ज्वाइन किया है, तो 4 डेज का हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। हाँ। तो क्या इन 4 डेज का जो इफेक्ट है वो हमारी आगे आने वाली सर्विस पे भी इंक्रीमेंट में पड़ेगा क्या? जी नहीं मैडम, नेक्स्ट ईयर जब आप 1 जुलाई को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपका 1 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, इसमें वैसे कोई सैलरी का फर्क नहीं पड़ता। 4 डेज की आपकी पुराने से बनेगी और बाकी रिमेनिंग डेज से। हाँ। और जब नेक्स्ट ईयर लगेगा तो नेक्स्ट ईयर आपका वापस फर्स्ट ही हो जाएगा, उसमें इसका कोई 4 डेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। एक क्वेश्चन कि अगर 1 फरवरी को ज्वाइन किया है तो इंक्रीमेंट जुलाई का लगेगा क्या सर? नहीं 1 लगेगा, जुलाई से 1 जनवरी को लगेगा मैडम, एज पर 1 7 जनवरी CBC। अगर जिसके 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। अच्छा, लेकिन सर 31 जुलाई को तो 6 मंथ पूरे होते हैं। नहीं, फरवरी से मैम, फरवरी में सर मैटरनिटी लीव से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ मैडम, पूछिए। सर जो विंटर ब्रेक और समर ब्रेक वो मैटरनिटी लीव के अंदर होती है या उससे मतलब एक्सटेंड हो जाती है मैटरनिटी लीव? पता नहीं यार, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। मैटरनिटी जिस दिन आप अप्लाई करती हैं, अगर उनकी बिटवीन में समर ब्रेक या विंटर ब्रेक आते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं उन्हीं डेज में। वो 180 डेज में इंक्लूड है, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप। इंक्लूड चलो ठीक है, जिस दिन आपने डेट किया उसी दिन से लेके 6 मंथs तक। ठीक है। हाँ सर मैटरनिटी लीव से मेरा एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर, कि जैसे अगर ठीक है, हाँ, 5 मई या 8 मई से समर वेकेशन लग गए हैं, बताऊंगा अगर आपकी आवाज आएगी ना तो फिर मैं बताऊंगा। 25 मई को होती है, तो स्टडी लीव और 25 मई से लगेगी या फिर जो 25 जून से जो स्कूल स्टार्ट होंगे तब से स्टार्ट होगा? देखिए, मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जहाँ तक मैटरनिटी की बात है, आप मैटरनिटी अगर आपने उस 5 तारीख से अप्लाई किया तो 5 से ग्रांट होगी, अगर आप 25 से अप्लाई करती हैं तो 25 से ग्रांट होगी। पैटर्निटी लीव भी जिस दिन बेबी बॉर्न हो जाता है उसके इमीडिएटली आप कर सकते हैं या विद इन 6 मंथ्स अवेल कर। अच्छा, मीन्स 1 महीने के बाद हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तो समर वेकेशन ही है, तो छुट्टी लेने से कोई मतलब नहीं है। बाद मतलब जब स्टार्ट हो रहा है स्कूल, उसकी समर वेकेशन की इमीडिएटली जिस दिन से स्कूल स्टार्ट हो रहा है उसी दिन से
आपको स्कूल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी सर्विस बुक में बेबी का नाम वगैरह लिखा जाएगा, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक पवन सर, हाँ सर, पवन जी सर इस बोलिए। केस में आप बता पाओगे, जो उनका कहना यह है कि जैसे मेरी छुट्टी हो रही है 5 से स्टार्ट और डिलीवरी मेरी 25 को है, तो मुझे क्या ग्रांट होना चाहिए? तो डिलीवरी होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहो तो आप 5 तारीख से कर सकते हैं, चाहे तो वो उनकी अपनी इंडिविजुअल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वेकेशन में अगर डिलीवरी हुई या वेकेशन में आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ी तो आपको वेकेशन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। जब स्कूल खुलेंगे उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अपने वेकेशन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है इस पे? नहीं तो हम Yes. हाँ मैडम Excuse me, बोलिए sir. मैडम। सर जो समर ब्रेक और विंटर वेकेशन होता है, हाँ इसके बाद रीओपनिंग डे के दिन ज्वाइन करना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल ज़रूरी होता है मैम, बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप कोई भी मैं- वेकेशन या ब्रेक, हाँ मैं पवन, इस केस में ऐसा है, इस केस में ऐसा है, जो आपके 50 डेज के वेकेशन होते हैं उसमें कोई से भी एक टाइम, यानी आपके फर्स्ट डे या लास्ट डे अटेंड करना होता है, पर जो 10 डेज के ब्रेक होते हैं उसमें दोनों टाइम अटेंड करना जरूरी होता है। केवल हमें एग्जेम्पशन है ओनली प्रीफिक्स या सफिक्स समर ब्रेक के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी दोनों ब्रेक हैं किसी टाइप के, तो उसमें आपको दोनों टाइम पे ज्वाइन करना जरूरी होता है। संदीप सर इज़ लाइव नाउ। तो संदीप सर, हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, EL, HPL, CCL, उसके बाद हमने मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव कवर कर लिया है। तो अब आप, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है हाँ सर, सर, क्लियर। तो अब आप आपको आ रही है? हाँ, चाइल्ड केयर लीव और स्टडी लीव जो बची हुई हैं उनके बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम सर्विस ब्रेक के बारे में बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और पवन सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ सर। ये वेकेशन के साथ जो हम छुट्टी लेते हैं, हाँ, इसमें सर दोनों टाइम ज्वाइन करना जरूरी होता है, और हम मेडिकल ग्राउंड पे ही सर प्रिंसिपल इसको अलाउड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें तो रीजनल ऑफिस से इसका वो लेना पड़ता है, प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। प्री अप्रूवल लेना, हाँ। प्री नहीं, पोस्ट अप्रूवल ले वो सकते हैं, केवल- नो प्रॉब्लम। सर वो मुझे लगता है वो केवल ब्रेक में अलाउड है, 10 दिन की जो छुट्टियां होती है सर, उसी में 10 है। दिन अगर की आप break- किसी फर्स्ट डे नहीं है या लास्ट डे नहीं है, नहीं केवल सर, 10 समर दिन ब्रेक की जो break में तो मेडिकल 50 दिन सर, जो 50 10 दिन का जो होती है, वेकेशन होते हैं एक एंड time विंटर आप ब्रेक break जो होता है, उसमें ओनली DC इज द competent टू ग्रांट योर लीव इन मेडिकल केस और एनी केस। ओके, बट वेकेशन में सर प्रिंसिपल इज competent इन मेडिकल केस ओनली, अदर प्राइवेट अफेयर्स और अदर केसेस द DC इज द competent authority राइट। तो रेगुलराइज सच पीरियड। सो इट इज़ क्लियर दैट अगर वेकेशन के टाइम पे हमें लीव चाहिए तो मतलब अगर हमें वेकेशन स्टार्ट होने से पहले या वेकेशन ख़त्म होने के बाद अगर हमें लीव चाहिए, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं फर्स्ट डे और लास्ट डे, तो हमें प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा DC से, और मेडिकल केसेस में प्रिंसिपल अप्रूव कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द ब्रेक्स अगर हमें लीव चाहिए आगे या पीछे, प्रीयर और पोस्ट, तो हमें प्रीयर अप्रूवल लेना ही पड़ेगा और वो DC ही अप्रूव करेगा। इवन मेडिकल केसेस में भी DC ही अप्रूव करेगा। पवन सर, एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ सर। जैसे मान लो जो ब्रेक है अपने ऑटम ब्रेक या जो विंटर ब्रेक होते हैं, हाँ सर। इसके पहले हमें EL लेनी है। जैसे मान लो हमारे पास EL पड़ी है और हम कुछ काम है जो हम जाना चाहते हैं घर, और EL लेकर जा रहे हैं, तो जैसे हम घर में ही हैं, वहां से फिर ब्रेक स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो 8 EL हमने ले ली, फिर उसके बाद से क्या है कि हमारा ब्रेक स्टार्ट हो रहा है, तो क्या प्रेजेंट होना जरूरी है यहाँ पे आकर, या वो कंटिन्यू होगा, या क्या इसका रूल है? सर आपको ब्रेक्स में दोनों साइड प्रेजेंट होना जरूरी है सर। मतलब ये EL नहीं मिलेगी, अगर EL हम लेते हैं तो सारा EOL हो जाएगा। सर वो EOL हो जाएगा, वो इन कंजेक्शन EOL सर है पूरी नहीं होगी, बट पूरी जो आपकी ब्रेक्स हैं वो EL जो भी आपके पास छुट्टी है, EL हैं जो भी है, अगर उसी के साथ कंबाइन हो जाएंगे सर, इन कंजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए DC से अप्रूवल ले सकते हैं या इसमें नहीं? सर इस कंडीशन में नहीं ले सकते, ओनली मेडिकल ग्राउंड में ले सकते हैं आप। ओके, ठीक है।
ठीक है संदीप सर, आगे कंटिन्यू कर लीजिए आप। चाइल्ड केयर लीव और स्टडी लीव, उसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चंस लेंगे। सर एक्सक्यूज मी। यस मैम। सर मैटरनिटी लीव पर एक क्वेश्चन और था, अगर हम बेबी अडॉप्ट करते हैं हाँ तो उस केस में क्या मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलती हैं सर? बताइए सर। हाँ मिलती है। हाँ जी हाँ मिलती है, ग्रांटेड होती है सर, हो सकती है। मैटरनिटी लीव होगी अगर लीगली एडॉप्शन है तो हो सकता है। प्रोसीजर होना चाहिए उसका, अडॉप्शन का पूरा हाँ प्रोसीजर होना लीगली एडॉप्शन है और उसका अगर आपने बाकायदा परमिशन आरओ से लिए तो ग्रांट हो सकती है। सर बेबी का एज कितना होना चाहिए उस टाइम तक? एज की कोई Below 1 year. बिलो 1 ईयर। चाहे आप Below 1 year. मैटरनिटी लीव के लिए एडॉप्शन केस में मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों का सर? बिलो 1 years. ओके सर, थैंक यू सर। तो संदीप सर कंटिन्यू कर लीजिए। चाइल्ड केयर लीव करनी कंटिन्यू। हाँ चाइल्ड सर केयर लीव मेरा और एक स्टडी क्वेश्चन लीव। था सर। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पता करना था कि अब्रॉड पोस्टिंग में सर जब होती है अब्रॉड पोस्टिंग तो उसमें हमें कितना ज्वाइनिंग पीरियड मिलता है और कितने दिन पहले हम जो है सर अपने स्कूल से सर रिलीविंग ले सकते हैं? बताइए सर। भूषण सर। मैं कन्वे करता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो रूल वगैरह जो लागू होते हैं वो उस स्कूल के हिसाब से ही फिर इम्प्लीमेंट होने लग जाते हैं। रही बात आपकी रिलीविंग की, तो जिस दिन आपको सैंक्शन ऑर्डर वहाँ का मिलता है कि आपको वहाँ की पोस्टिंग दी गई है, उस स्कूल से उसी दिन आप रिलीव हो सकते हैं। वहाँ ज्वाइनिंग के लिए आपको 10 डेज जैसा कि अपना KVS का नियम है, मिनिमम वो और मैक्सिमम जो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से ग्रांट होता है। अच्छा सर, एक्चुअली मेरा अभी पोस्टिंग आई थी तो मेरा KV मॉस्को सिलेक्शन हुआ था 29 जून को, तो हमें 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया था सर पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए। मगर जैसे अभी सब पैंडेमिक की वजह से हम लोगों का अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि 21 जुलाई को हमें मूव करना है, अगस्त को सॉरी हमें मूव करना है। तो सर मैं यही पता करना चाह रही थी कि मैं अभी तो मैंने वापस अपने पासपोर्ट अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने स्कूल में ज्वाइन कर लिया है सर, तो मुझे यही पता करना था। मुझे लगता है इसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल और आपके कंसर्न DC से करनी पड़ेगी कि क्योंकि उन्होंने परमिशन आपको उसी हिसाब से रिलीव दी होगी, तो अब उनको नए तरह से एक बार परमिशन रिलीज करनी पड़ेगी। उसमें आपको 31 जुलाई के पहले वो मतलब 31 जुलाई के बाद की कोई डेट रिलीविंग की बनाएंगे। इनको कम्युनिकेट हो गया ना ऑलरेडी, 21 अगस्त को इन्हें मूव करना है। हाँ सर, हाँ, वो सारा हो गया। कम्युनिकेट किया ना, तो स्कूल को अब एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा कि भाई पहले ये डेट था अब ये डेट है, इस तरह से एक ऑर्डर बनेगा उनका। ओके, थैंक यू वेरी मच। संदीप सर अब आप कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। चाइल्ड केयर लीव वुमेन्स को दी जाती है। वुमेन्स को 730 डेज के लिए दी जाती है एंटायर सर्विस में, अप टू 2 चिल्ड्रन। ओके, और ये एक सिंगल मेल पेरेंट को भी अब एलिजिबल हैं 730 डेज की। ठीक है, और ये अप टू 18 इयर्स के लिए जो चाइल्ड होगा उसी पे एडमिसिबल होंगी। आपका 18 इयर्स का जैसे 18 से कंप्लीट कर जाएंगे तो वो आपकी लैप्स कर जाएंगी सारी 730 डेज की। अगर उसमें से 300 भी बची हैं तो वो लैप्स कर जाएंगी 18 इयर्स का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका चाइल्ड। ओके, एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट है 365 डेज की, जो फर्स्ट 365 डेज होती है उसमें 100% सैलरी दी जाएगी, बट नेक्स्ट आपकी आफ्टर 365 डेज जो नेक्स्ट 365 डेज की होंगी उसमें 80% सैलरी होगी, 80% सैलरी। और ये 7 CPC के अकॉर्डिंग आया है जो भी रूल है। ठीक है सर, और साल में मेरे ख्याल से हम 5 बार ले सकते हैं मिनिमम 1 वीक के लिए। मिनिमम 5 आपको इससे नीचे नहीं ले सकते आप। हाँ, मिनिमम 5 डेज की लीव लेनी होगी और साल में 5 बार ले सकते हैं। 3 टाइम्स ले सकते हैं मेल पेरेंट, हाँ, जो सिंगल मेल पेरेंट है, और 5 टाइम्स ले सकते हैं आपका फीमेल पेरेंट्स, मतलब फीमेल्स। ओके सर, इसमें पवन क्या है क्या कि कितने दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा? सर ज्यादा का नहीं है सर, नहीं ज्यादा का कुछ नहीं है, मिनिमम है, मिनिमम 5 डेज लेनी है। ये भी 2018 में जो सर्कुलर आया था उसमें ही ग्रांट लेस देन 5 नहीं कर सकते।
और इसमें एक और चीज़ अभी जो रिसेंटली 2018 में सर्कुलर आया था 19 में, उसमें LTC पे भी जा सकते हो आप चाइल्ड केयर लीव लेके। तो बच्चों को घुमाने के लिए जाना है तो भी आप जा सकते हो चाइल्ड केयर लीव लेके। पहले एग्जामिनेशन सिकनेस हाँ। समथिंग इसके लिए ली जाती है, बट अब आप इसके लिए भी एडमिसिबल। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं सर स्टडी लीव के बारे में। स्टडी लीव सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपना 5 ईयर कंप्लीट करना जरूरी है। पहले आपको स्टडी लीव नहीं दी जाएगी, वो भी स्पेशलाइज अगर आपकी रिलेटेड जॉब से और आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो स्टडी लीव का पूरा फंडा ये है कि आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा होने वाला है आपकी स्टडी की वजह से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्टडी लीव अप्रूव करने का जो पावर है वो सिर्फ कमिश्नर के पास होता है, तो हेडक्वार्टर से ही ये लीव अप्रूव होती है। तो उसके लिए आपको प्रपोज़ल देना पड़ता है, उसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए स्टडी करने के लिए। उसके बाद फिर आप प्रपोज़ल देंगे, अपना लीव अप्लाई करेंगे, वो लीव रीजनल ऑफिस जाएगा, रीजनल ऑफिस से हेडक्वार्टर जाएगा और केवल हेडक्वार्टर के पास पावर है उस लीव को अप्रूव करने का। उसके लिए मिनिमम आपने 5 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर ली हो और आप कोई ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि KVS को कुछ बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तभी उसी केस में अप्रूव हो सकती है। अभी तक मेरे को लास्ट 5 ईयर्स की मेरी सर्विस में मैंने कोई केस नहीं देखा है स्टडी लीव का, बट ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ऑप्शन है। अब लीव्स के ऊपर अब सर आप इसके बारे में डाइजनॉन के बारे में और सर्विस ब्रेक के बारे में थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद भूषण सर आप बताना चाहेंगे डाइजनॉन और तो ये स्टडी लीव के बारे में एक क्वेश्चन था सर, तो इसमें पे सैलरी कितनी मिलती है या फुल सैलरी होती है, कैसे होता है सर? इस केस में पे मिलती है पर ट्रांसपोर्टेशन और HRA बंद हो जाता है। TADA सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA और आपका DA ऑन TA और HRA आपका बंद हो जाएगा और केवल HRA तो 6 महीने मिलेगा ना, HRA 6 महीने। हाँ, फर्स्ट 6 मंथ HRA मिलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। हाँ ठीक है। हेलो, यस मैम। सर एक क्वेश्चन है स्टडी लीव से रिलेटेड। जी बोलिए। जैसे अगर मैंने जैसे BCA किया हुआ है सर और आगे MCA की स्टडी में रेगुलर बेसिस पे करना चाहती हूँ, तो क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा मतलब होगा या मतलब मुझे परमिशन मिलेगी रेगुलर करने के लिए? अगर आप अपनी खुद की एजुकेशन अपग्रेड करने के लिए करती हैं तो नहीं मिलती है, वो केवल बेनिफिट ऑफ आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे आपको या आपके KVS को कुछ हो तभी ग्रांट होती है। केवल खुद की, जैसे आप M.Ed हैं या B.Ed हैं या M.Ed करना चाहती हैं या BA हैं तो MA करना चाहती हैं, उस केस में नहीं ग्रांट होती। ठीक है सर, थैंक यू सर। बट स्टिल यू कैन प्रपोज, अगर अप्रूव हो जाए तो हमें भी एग्जांपल मिलेगा देखने के लिए। ठीक है। और सर भूषण सर थोड़ा सर्विस ब्रेक और डाइजनॉन पीरियड के बारे में बता दीजिए, फिर हम क्विकली नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। मैं सर्विस ब्रेक का पहले बताता हूँ। जैसे हमने कोई EOL लीव पर्सनल अफेयर पे, तो जो पर्सनल अफेयर पे हम लीव लेते हैं, जैसे सपोज करो मेरे घर में कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मेरे पास अपनी टाइप की कोई लीव बची है चाहे नहीं बची है, दोनों अवस्था में मुझे घर पे रहना पड़ रहा है, तो और मैं इंटीमेट किसी वजह से नहीं कर पाया या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया, तो उस पीरियड को मेरे सर्विस ब्रेक कर दिया जाता है। यानी मेरी सर्विस का उतना कम पीरियड माना जाएगा, उसको ट्रीट एज ए उतना पीरियड मेरा लेस गिना जाएगा। तो सर सर्विस ब्रेक में जो हमने पीछे जितनी सर्विस की है वो सारी तो वेस्ट हो जाती है ना? उस केस में क्या होता है कि जैसे जो सर्विस के पुराने पीरियड है वो बेनिफिट सारे कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आपका वो सब माना जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, होगा, बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। हाँ, सो रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी सर्विस की काउंटिंग होती है, सर्विस की काउंटिंग और रिटायरमेंट के टाइम पे जो सर्विस की काउंटिंग होगी उसमें वो पीरियड उसको हटा दिया जाता है। यानी आपकी टोटल सर्विस, उसके पीछे का जो हमने जॉब की है वो सारा पीरियड हटा दिया जाएगा ना? हाँ, वो हटा दिया जाएगा। हाँ, सो मान लीजिए मेरी 5 साल की सर्विस हो गई है और मैं EOL पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे अपनी मर्जी से चले जाता हूँ या किसी कारण से चला जाता हूँ,
और मैं ज्वाइन नहीं कर पाता, कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाता, और प्रिंसिपल सर जो हैं या मेरे कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी हैं उन्होंने मेरी लीव को प्राइवेट अफेयर्स में मान के और मेरा सर्विस ब्रेक कर दिया है, उसके लिए स्पेशल ऑर्डर निकलेगा कि आपकी सर्विस ब्रेक की जा रही है और आपकी सर्विस बुक में एंट्री भी होगी उसकी। अगर एंट्री नहीं है तो सर्विस ब्रेक नहीं होती है, तो एंट्री होगी। उसके बाद जब मेरी सर्विस ब्रेक हो गई तो मेरी पीछे की 5 साल की ड्यूटी जो मैंने की है, जो मैंने जॉब किया, सर्विस किया है, वो सारा वेस्ट हो गया। अब मैं दोबारा जिस दिन ज्वाइन करूँगा उस दिन से मेरी सर्विस काउंट होगी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो मैंने जब से रेगुलर सर्विस की तभी से काउंट होगा, पीछे का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा है, कोई प्लीज़ बुरा ना माने, बट मैंने देखा है कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ को आदत होती है कि बार बार जो है EOL पे चले जाते हैं, सर्विस ब्रेक भी हो जाती है, और थोड़ा सा फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है, उनकी कुछ मजबूरियां रहती हैं फैमिली को लेके, परिवार को लेके, तो उनको बार बार जाना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये है कि सर्विस ब्रेक से और डाइजनॉन पीरियड से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सबसे बड़ा लॉस यही है कि हमारी पीछे की सर्विस सारी वेस्ट हो जाती है। हाँ सर, संदीप सर आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? जो रिटायरमेंट बेनिफिट होने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 33 साल का अगर हम पीरियड मानते हैं तो वो उतने पीरियड का कम, यानी आपको केवल उतने ही पीरियड का पेमेंट मिलेगा जिस दिन से आप रेगुलर हुए, वो 5 साल सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ पवन जी, जैसे लास्ट टाइम आपने APR के ऊपर दिया था, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, APR में भी एक कॉलम होता है जहाँ पे आपकी जो लीव्स हैं उसके लिए लिखा जाता है, जो लॉन्ग लीव लिस्ट दे रखी है आपने। हाँ। EOL उसका इफेक्ट पड़ता है आपके पॉइंट्स के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी, आपके सुपीरियर उसे देखेगा। बिल्कुल सर, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है काउंटिंग 1 ईयर की गिनते हैं, अगर उसका 1 साल कंप्लीट है वो उसकी कंप्लीशन के लिए इसलिए लीव देखी जाती है। APR का भी 1 साल का ही नियम इसलिए माना जाता है कि उसमें अगर कोई उसको आप उस पीरियड को जज नहीं कर पाते कि अगर वो EOL पे चला गया या लंबी लीव पर चला गया, तो इसलिए उसकी APR के लिए भी वही पॉइंट है कि उसकी रेगुलर सर्विस कितनी है, इसलिए वो मेंशन किया जाता है। तो मान लीजिए डिपेंड करता है सर, वो परफॉर्मेंस की देखी जाती है कि ये रेगुलर है, सर्विस में रेगुलर है। एक ओवरव्यू माइंडसेट करने के लिए ऑफिसर को एक हेल्प मिल जाती है। प्लस अगर 90 डेज से कम की रेगुलर सर्विस है आपकी तो फिर APR लिखी नहीं जाती, आगे रिव्यू नहीं किया जाता उसको 90 डेज से कम होने पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। पवन सर। हाँ सर। सर क्या EOL में HRA मिलता है क्या? नहीं। HRA भूषण सर, EOL में कोई पेमेंट HRA का भी ग्रांट नहीं होता, क्योंकि कायदे से जब वो बंदा फिजिकली स्कूल से ही एब्सेंस है तो उसके हर तरह के बेनिफिट कैंसिल हो जाते हैं। पर अगर वो प्रिंसिपल को किसी तरह से कन्विंस करता है या अपनी कोई प्रॉब्लम दिखाता है तो प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसको 2 मंथ्स के लिए HRA ग्रांट कर सकता है, फर्स्ट 2 मंथ्स। ओके सर, मेरे केस में क्या था कि मैंने EOL लिया था 80 डेज का, और सर स्कूल में नहीं दिया था, बाद में ऑडिट ने ऐसे बोला था कि HRA अलाउ है। हाँ, फर्स्ट 2 मंथ्स अगर वो प्रिंसिपल का अगर आप एप्लीकेशन उसको प्रॉपर देते हो तो वो ग्रांट कर सकता है, परमिशन दे सकता है फर्स्ट 2 मंथ्स। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे मैंने EOL लिया है तो वो पीरियड जो बाद वाला, जैसे मैंने पीरियड EOL लिया 19 में, मैंने ज्वाइनिंग की 2018 में, अब जैसे 2020 में मेरा कंफर्मेशन होना है, क्या वो 18 to 19 वाला जो पीरियड है वो लैप्स हो जाएगा क्या कंफर्मेशन में भी? कंफर्मेशन में जितने दिन की आपने पीरियड नहीं दिया जाता, जितने दिन पीरियड लेस हो जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी को आपका कंफर्मेशन होना है तो 80 डेज उसमें ऐड हो जाएंगे, 80 डेज ऐड हो जाएंगे तो आपका कंफर्मेशन होगा जनवरी, फरवरी, मार्च में 21 जितना पीरियड आपने EOL लिया है एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, उतना पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। थैंक यू सर। रीना मैडम का क्वेश्चन है कि सर्विस ब्रेक का मिनिमम पीरियड कितना होता है? मैम 1 दिन से भी सर्विस ब्रेक हो जाती है, 1 डे से भी। अगर आप अनऑथराइज लीव पे हैं, आपने इन्फॉर्म नहीं किया है और प्रिंसिपल चाहें तो आपकी सर्विस ब्रेक कर सकते हैं, आपको एक ऑर्डर देके कि आप विदाउट परमिशन लीव पे थे। यस पूनम मैडम पूछिए। फोन पे इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ, फोन पे इन्फॉर्म किया है कि हमें लीव लेना है, लेकिन रिटर्न में जैसे जो प्रोफार्मा भरते हैं कि हमें CL लेना है या EOL लेना है, वो भर नहीं पाए, स्कूल ही नहीं पहुंच पाए, इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो प्रिंसिपल उस लीव को कंसिडर नहीं करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं, वो उनकी डिस्क्रिप्शन में वर्बली इन्फॉर्म कर दिया तो वो एज ए ट्वीट आपकी लीव होगी, वो आप बाद में जाके उसको आप लीव भर सकती हैं। इमरजेंसी कोई ऐसी कंडीशन आ गई जैसे
लॉकडाउन नहीं हुआ, आप स्कूल नहीं अटेंड कर पा रही हैं, या कोई ऐसी कंडीशन हो गई, स्ट्राइक हो गई, आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाई और उस दिन आपको लीव लेनी थी, तो वो आपकी लीव बाद में प्रिंसिपल उसको ग्रांट कर सकता है। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 20 तारीख को इन्फॉर्म करके गई थी फोन पे कि मैं लीव पर जाना है मुझे घर, और लेकिन मुझे लॉकडाउन के कारण फिर वापस नहीं आ पाई, 27 को वापस आना था। ठीक है, तो मुझे इसका लीव लेना पड़ा, यूएल लेने के लिए बोला गया है। इसके लिए मुझे लगता है आपको आपके प्रिंसिपल से कन्वे करना चाहिए कि मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं सर, लॉकडाउन की वजह से मैडम ज्वाइन भी नहीं कर पाई हैं, तो बट अभी एक क्लैरिफिकेशन आ गया है मैम हेडक्वार्टर का, मैं शेयर कर दूंगा और बहुत लोगों को मिल भी गया होगा, उसमें सिचुएशन वाइज लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन। हाँ, सिचुएशन वाइज डीओपीटी ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि किस केस में कैसे डील करना है। और बाकी जो ये एक मिनट मैडम, तो जो ये पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है ना मैडम, इसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा इसके बारे में, हम अभी जनरल रूल्स की बात करते हैं। यस मैम, पूनम मैडम पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, अभी मैंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, मैं अपने स्टेशन पर नहीं हूँ। इस केस में जो मेरी सैलरी बन रही है वो कुछ कम बन रही है, क्या मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिल रहा है? मैम ये देखना अगर पड़ेगा। आप स्टेशन लीव विद परमिशन से गई हैं, अगर स्टेशन लीव आप विद परमिशन से गई हैं तो आपका नहीं कटना चाहिए, और अगर आप विदाउट उनकी एक्नॉलेज के अगर आप गई हैं तो शायद काट रहे होंगे वो, क्योंकि अगर आप स्टेशन पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं कटेगा। सर मैं इन्फॉर्म करके ही गई थी सर। बाकी इस सिचुएशन में ना थोड़े से अभी कंफ्यूजन है, इस पर क्लैरिफिकेशन पूरा आया नहीं है मैडम, तो जब तक पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप एक बार अपनी सैलरी स्लिप चेक कीजिएगा वापस ज्वाइनिंग करने के बाद, तब आपको क्लियर। हाँ मैम, बाकी सारा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन क्या हम लोग की सैलरी स्लिप देखने के लिए केवी में कोई ऐप या कुछ और चीज नहीं है? हम लोग को बार बार सैलरी स्लिप के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है ऑफिस में। नहीं मैडम, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कौन एक केवीएस का नियम है कि हर एक एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए, हाँ। चाहे वो आप हार्ड कॉपी दें चाहे वैसे करें, ईमेल पे करें, ये आपकी स्कूल के उसको भी आप डिपेंड करता है कि भाई वो आपकी सैलरी स्लिप पे या तो मेल करें या आपको हो सकता है उसकी हार्ड कॉपी दें, पर ये रूल तो है कि भाई सैलरी सर ये ऑर्डर भी है। हाँ, ऑर्डर भी है, पर अभी लॉकडाउन की वजह से जैसे बहुत से लोगों को सैलरी स्लिप नहीं मिल पा रही है ना, तो आप ईमेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी ऑफिस में भी स्टाफ कम है, नहीं मिल पा रही होगी, तो थोड़ा सा अभी आपको भी मैनेज करना चाहिए, और स्कूल खुलने के बाद आप एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल कोई ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप नहीं है जिसपे हम सैलरी स्लिप देख सकें या डाउनलोड कर सकें। सो आई होप सर डाइजनॉन पीरियड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है। जो आई थिंक जो सर्विस ब्रेक होती है उसके उस पीरियड को हम डाइजनॉन पीरियड कहते हैं, राइट भूषण सर? हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उसी पीरियड को हम डाइजनॉन, जब हमारा सर्विस, हाँ जी, हाँ सर्विस ब्रेक हो जाता है, और मान लीजिए मैं 10 दिन की यूएल पे गया और मेरे को ऑर्डर निकाल के सर्विस ब्रेक कर दी गई है मेरी, तो ये 10 दिन का जो पीरियड है वो मेरा डाइज नॉन माना जाता है। डाइज का मतलब सभी को पता ही है, तो डाइज नॉन माना जाता है। इसके सारे पीरियड है, मतलब इसके 10 दिन के जितने बेनिफिट हैं वो सब फिनिश हो जाते हैं। सो नाउ आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है लीव में। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और अभी भी आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ, और साथ